اتفاق کرتی ہے تو بھارت دنیا کو خوراک فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت جلد ہی امداد باہمی سے متعلق ایک تازہ اور بہتر پالیسی لائے گی۔ UGC نے طلباء کو اجازت دے دی ہے کہ وہ بیک وقت 2 ڈگریوں کے لیے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ بات چیت خاتمے کے درپے ہے۔ اوڈیشہ سرکار ریاست کے سبھی ضلعوں کے اسکولوں میں ہاکی کلبز کا آغاز کرے گی، اور IPL کرکٹ میں ممبئی میں چنئی سپر کنگز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر WTO متفق ہو تو بھارت دنیا کو اناج سپلائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ اپنی بات چیت میں انہوں نے دنیا کے دوسرے ملکوں کو اناج فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، بشرطیے کہ WTO کے ضابطوں میں ایسے کسی قدم کی اجازت دینے کے لیے نرمی کر دی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں اناج کا ذخیرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے یہ بات گجرات میں ادلج کے مقام پر شری انپورنا دھام ٹرسٹ کے ہاسٹل اور تعلیمی کمپلیکس کا کل ویڈیو کانفرنس کے وسیلے سے افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماں انپورنا کی مہربانی سے بھارتی کسان اناج کے معاملے میں دنیا کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کی ثقافت میں خوراک، صحت اور تعلیم کو ہمیشہ کافی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور آج شری انپورنا دھام نے ان عناصر میں توسیع کی ہے۔ ہماری پرمپرا میں بھوجن، آروگیہ اور شکشا پر ہمیشہ سے بہت بل دیا گیا ہے۔ آپ نے انہی تتووں کا ماں انپورنا دھام میں وستار کیا ہے۔ یہ جو نئی سویدھائیں وکست ہوئی ہیں یا جو آروگیہ دھام یہاں بننے جا رہا ہے، اس سے گجرات کے سامانیہ مانوی کو بہت ادھک لابھ ہوگا۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے ملک میں امداد باہمی سے متعلق ایک نئی پالیسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اگلے 8-9 مہینوں میں ایک نئی پالیسی وضع کرے گا جو ایپیکس کوآپریٹو فیڈریشن کے اہم زرعی کریڈٹ سوسائٹی کے امور سے نمٹے گی۔ نئی دلی میں امداد باہمی کی پالیسی سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امداد باہمی کے شعبے میں شفافیت کی ضرورت پر زور دیا تاکہ چھوٹے کسانوں کے اعتماد میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے اس شعبے کی جدت ترازی اور پیشہ ورانہ مہارت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کے لیے امداد باہمی کے شعبے کو مستحکم کیے جانے اور امداد باہمی کے اداروں کے لیے قرض کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امداد باہمی کے تئیں حکومت کے عزم کو دہرایا اور کہا کہ نریندر مودی حکومت نے امداد باہمی کی ایک نئی وزارت تشکیل دی ہے جس کا مقصد ملک میں امداد باہمی کی تحریک کو مستحکم کرنا ہے۔ सालों से सहकारिता से जुड़े क्षेत्र के सभी लोगों की एक मांग थी कि भारत सरकार सहकारिता के सिद्धांत को मान्यता दे, प्रमुखता से इसके काम को गति देने के लिए एक अलग मंत्रालय का निर्माण करे। कोई न कोई कारणों से ये चीजें टलती जाती थी। अंततोगत्वा 6 जुलाई 2021 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया और भारत में पहली बार भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। مرکزی وزارت داخلہ نے جھارکھنڈ کے دیوگھر ضلع میں سرزد روپ وے کے ایک حادثے کے مد نظر ایک ہدایت جاری کی ہے۔ وزارت نے مستقبل میں ایسا کوئی حادثہ سرزد نہ ہو اس کے لیے کام کاج کے تفصیلی معیاری طریقہ کار اور کسی ہنگامی صورتحال سے متعلق منصوبے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سبھی ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کے نام ایک خط میں مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے بھلا نے کہا کہ روپ وے پروجیکٹوں کا کام کاج اور دیکھ بھال پوری تندہی سے کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی سرکار کو چاہیے کہ وہ ہر ایک روپ وے پروجیکٹ کے محفوظ ہونے کی جانچ کے لیے ایک تجربہ کار اور اہلیت کی حامل کمپنی کو کام پر لگائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روپ وے کے ہر ایک پروجیکٹ کے لیے دیکھ بھال سے متعلق ضابطے تیار کیے جائیں۔ ان ضابطوں پر کاربند ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق ایک پروگرام ہونا چاہیے تاکہ حفاظتی معیارات کے مطابق بہترین صنعتی طور طریقے اپنائے جائیں۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ روپ وے سے متعلق سبھی پروجیکٹوں کے سلسلے میں صورتحال کا جائزہ لیں اور اس بات کی یقین دہانی کریں کہ کام کاج کے معیاری طور طریقے، کام کاج کے لیے ہنگامی منصوبے اور روپ ویز کی دیکھ بھال اور حفاظتی جانچ کا نظام صحیح معنوں میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جہاں روپ ویز والی جگہوں پر
हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए वक्तन फवक्तन फर्जी मशक़ें कराई जाएं। उन्होंने भारतीय फजाइया, एनडीआरएफ, भारतीय फौज, आईटीबीपी और मकामी इंतजामिया की फंसे हुए अफराद को बचाने की जबरदस्त कोशिशों को सराहा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने मीडिया के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान बताया कि यूजीसी तलबा को बैक वक्त 2 कुलवक्ती डिग्री प्रोग्राम्स में मुताले की इजाजत देगी। जनाब कुमार ने कहा कि तलबा एक ही यूनिवर्सिटी या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से फिजिकल मोड में बैक वक्त 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स में तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा बैक वक्त ऑनलाइन मोड में 2 तालीमी इदारों में मुताला जारी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे तलबा को और ज्यादा मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी के बहुत से हिस्से मुल्क भर में नाफिज कर दिए गए हैं और यूजीसी कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत लचकदारी फराहम करने की कोशिश कर रही है। यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि इस सिलसिले में रहनुमा खतूत पर जल्द अमल दरामद होगा। छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यूजीसी की तरफ से मिला है कि एक साथ कोई भी छात्र छात्राएं 2 कोर्स कर सकते हैं। इस तरह का डिमांड बहुत पहले से चलता आ रहा था, लेकिन जो स्वीकृति यूजीसी ने दिया है, मैं समझता हूं कि इससे छात्र छात्राओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिससे कि छात्र छात्राएं अपने जीवन में ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इससे छात्र छात्राएं काफी लाभान्वित होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल के नाइडिया जिले में एक 14 साल लड़की हंसखली की इज्तिमाई इस्मत दरी और हलाकत की सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में आजादाना और मुनसिफाना तफ्तीश और मुतासिरा लड़की के कुनबे के अफराद उस इलाके और रियासत के लोगों में एतमाद बहाल करने की खातिर मकामी पुलिस के बजाय सीबीआई से इस मामले की तफ्तीश कराई जानी चाहिए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एक डिवीजन बेंच ने सीबीआई से कहा है कि वो 2 मई को तफ्तीश के सिलसिले में पेशरफ्त पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस मामले की अगली समाअत 2 मई को ही है। मुतल्लिका हुक्काम को यह भी हिदायत दी गई है कि वो मुतासिरा लड़की और इस केस के गवाहों के कुनबे के अफराद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने पीर को 14 साल लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी की तफसीलात के बारे में शुकूक जाहिर किए थे। उनके बयान से अपोजिशन पार्टियों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया था, जिन्होंने उनके बयान को अफसोसनाक और समझ से बाहर बताया था। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि शिमाल मशरकी खित्ता वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आला तरजीह है और उनका महकमा इसी साल के अंदर अंदर मुल्क में 107 इजाफी कमर्शियल तैयारे शामिल करने के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है, जिनमें से 25 तैयारों को अरुणाचल प्रदेश समेत शिमाल मशरकी रियासतों के लिए मुख्तस किया गया है। जनाब सिंधिया, जिन्होंने डिब्रूगढ़, पासीघाट, लीलाबाड़ी के रास्ते आने जाने वाली पहली परवाज डॉर्नियर 228 को रवाना किया था, कहा है कि अगले 2 मरहलों में अरुणाचल प्रदेश में मेचुका, त्यूतिंग, जीरो, तीजू और विजयनगर को फजाई राब्ते से जोड़ने के लिए इकदाम किए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत दुनिया में पहला ऐसा मुल्क है जिसने 18 साल से ज्यादा उम्र की 97% आबादी के कोविड से बचाव का पहला टीका लगा दिया है। उन्होंने कहा कि 85% लोग दूसरा टीका लगवा चुके हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कल मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र के 5 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों के पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 3 करोड़ 98 लाख लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। मुल्क के कोविड इंतजाम और टीकाकारी मुहिम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जिनेवा में वैक्सीन आलमी इत्तेहाद की मीटिंग में दुनिया ने भारत के जरिए कोविड से निपटने और टीकाकारी मुहिम का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाने की कामयाबी से दुनिया हैरतज़दा है, जो कोई मामूली बात नहीं है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कल पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को जामे तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए बैन विजारती तालमेल ग्रुप IMCG की पहली मीटिंग मुनक़िद की। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि IMCG ने भारत के पड़ोसियों के साथ बेहतर राब्ते को फरोग देने, मजीद मजबूत आपसी रिश्ते और अवाम से अवाम के राब्ते को बेहतर बनाने के लिए सरकार के मुकम्मल नजरिए के साथ एक जामे राह फराहम की है। भारत और अमरीका ने
पीर को वाशिंगटन में मुनक़िद 2+2 चौथे वजारती मुज़ाकरात में इलाकाई इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती को फ़रोग़ देने के अपने अज़्म का इजहार किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय वफ़द की क़यादत की, जबकि अमरीकी वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने की। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने ख़ारजा पॉलिसी, दिफा और सलामती से मुताल्लिक़ भारत अमरीका दोतरफ़ा एजेंडे के मुख्तलिफ अहम मामलात का जामे जायज़ा लिया। इन मुज़ाकरात में ममालिक ने ख़ारजा पॉलिसी, दिफा और सलामती से मुताल्लिक़ भारत अमरीका दोतरफ़ा एजेंडे के मुख्तलिफ अहम मामलात का जायज़ा लिया। उन्होंने अमरीकी कंपनियों को भारत आने, सरमायाकारी करने और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में ताउन करने की दावत दी। भारत और अमेरिका के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और मैंने यह आग्रह किया है अमेरिका से कि अमेरिका आकर भारत में यहां पर फोकस करे विशेष रूप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर। यहां की जो ओईएम्स हैं वो भारत में आए, उनका स्वागत है, क्योंकि भारत में ये एक निर्णय है मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत को यदि हम सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं तो। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ अमन बातचीत में पेशरफ्त के इम्कानात खत्म हो गए हैं। बेलारूस के अपने हममनसब अलेक्जेंडर लुकाशेंका के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने अहद किया कि वो यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयां उस वक्त तक बंद नहीं करेंगे जब तक रूस कामयाब नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक कोई समझौता तय नहीं पा जाता, टास्क की पूरी तरह मुकम्मल हो जाने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। ओडिशा हुकूमत रियासत के सभी अजला के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने वाली है। हॉकी प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ओडिशा के चेयरपर्सन दिलीप तिर्की ने कहा कि मो स्कूल हॉकी क्लब पहल का मकसद स्कूल की सतह पर हॉकी कल्चर को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार खेलों, खुसूसन हॉकी को फरोग देने के लिए मुमकिन हद तक सभी इकदाम कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 23 रन से हरा दिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने यूपी एमएलसी इलेक्शन में जीत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है। यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा के विकास मॉडल की जीत। अखबार मशरिक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए गुजरात के अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करने के दौरान उनके इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है। हर समाज कोई न कोई समाजी जिम्मेदारी निभाता है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हिंदुस्तान और अमरीका के माबैन विजारती सतह के 2+2 मुज़ाकरात के सिलसिले में अपनी शहसुर्खी बनाई है। हिंद अमरीका फौजी ताउन की मजबूती पर फरीक़ैन मुत्तफ़िक़। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर WTO इत्तेफाक करती है तो भारत दुनिया को खुराक फराहम करने के लिए तैयार है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत जल्द ही इमदाद बाहमी से मुताल्लिक एक ताज़ा और बेहतर पॉलिसी लाएगी। यूजीसी ने तलबा को इजाजत दे दी है कि वो बैक वक्त 2 डिग्रियों के लिए मुताला कर सकते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ बातचीत खात्मे के दर पर है। ओडिशा सरकार रियासत के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब्स का आगाज करेगी। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 23 रन से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।